Okay. So this is for noiseless channels. So these all the protocols जो हम लोग अभी तक सीखे हैं, that is simplest and stop and wait. It will wait for the acknowledgement. That is for noiseless channel. So these two protocols for noiseless channel. Now noisy channels comes. Noisy channels means there is a chance of loss. There is a chance of data loss. Definitely there is a chance of data loss or error. Noisy channel means definitely there is a chance of data loss and as well as even acknowledgement also lost, may lost. So that is the thing for noisy channels. These things comes now next. That means data may loss or acknowledgement may loss. So for that, we have three protocols. One is stop and wait, go back in, selective repeat. Please very carefully understand. See, automatic repeat request, ARQ. This is not ARR. ARQ. Simple automatic repeat request. So stop and wait, automatic repeat request, go back in, automatic repeat request, selective repeat, automatic repeat request. Please, automatic repeat request, all the things have, all the particular algorithm or all the particular protocol, this have automatic repeat request. So automatic repeat request means, मैं बोला था, automatic repeat request means कुछ देर ये wait करेगा and wait करने के बाद it will automatically repeat that request if not sent, if not received, data not received, then automatically it will resend again. That is automatic repeat request, resend automatically it will do. So that part is done by again data link layer handling. This is called flow control. So noisy channel के लिए ये तीन एल्गोरिदम, तीन प्रोटोकॉल मेरे पास है. That is stop and wait ARQ. Here first thing stop and wait ARQ. इससे पहले noiseless channel के लिए भी stop and wait था. But here also stop and wait is there. Noisy channel also this stop and wait. But difference is there. Automatic repeat request is adding here. Automatic repeat request वहां पे नहीं था, noiseless channel के लिए नहीं था. See, error control, error correction in error correction. See, error correction. Error that means कोई डेटा नहीं पहुंच रहा है या कोई फ्रेम नहीं पहुंच रहा है या कोई फ्रेम corrupted पहुंच रहा है या कुछ भी हुआ है. So that is automatically stop and wait ARQ is done keeping the copy of the same frame and retransmitting of the frame when timer expires. So that means one timer is always there. So timer दिखेगा yes डेटा पहुंचा, no डेटा नहीं पहुंचा, automatically it will repeat that copy of. See, ये stop and wait क्या करेगा, इसका मतलब एक कॉपी रख लेगा जिसको सेंड किया. दैट मींस मैं फ्रेम नंबर 1 सेंड किया, तो उसका एक कॉपी मेरे पास रह गया है, मैं रख लूंगा. अगर वो नहीं पहुंचा या करप्टेड पहुंचा, टाइमर एग्जिस्ट कर गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा, दैट थिंग इट विल सी कि टाइमर मैं चालू किया था, टाइमर खत्म हो गया, मतलब टाइम ओवर हो गया, बट स्टिल डेटा इज नॉट रिसीव्ड बाय द रिसीवर, देन it will again retransmit it. That's the simple concept of stop and wait ARQ. Stop and wait ARQ. Please see the protocol way. Stop and wait ARQ. The acknowledgement number always announce the modulo 2 arithmetic. That means whenever you are doing the number, that means frame number or acknowledgement number, जो भी तुम बोलोगे, that frame number sequence always frame number given by modulo 2 arithmetic. That means please try to understand frame number always being given by modulo 2 arithmetic. See frame number, stop and wait ARQ. See frame number, this frame 0, frame 1, again frame 0, again frame 1, again frame 0, frame 1. That means modulo 2 arithmetic
will follow for the frame number. फ्रेम नंबर. नाउ अब तुम बोलोगे सर ये कहां पे होगा? ये होगा हेडर पार्ट में, ये होगा हेडर पार्ट में. That is for controlling. So that means ये frame number always by seeing that particular modulo 2 arithmetic करके ही तुम्हें frame number देना है इस particular protocol में. So first thing you have to clarify this. So stop and wait ARQ, what how it will do? See, 0 send किया, पहुंच गया. It will send the acknowledgement 0. It will send the acknowledgement 0. So see, here it is. Acknowledgement up. Now here you try to understand. It will send the acknowledgement for next one. Sorry, it will send acknowledge. It will send that frame 0, and it will send acknowledgement for 1. That means what it happens. इसके साथ साथ वो अपना रिक्वेस्ट भी सेंड कर रहा है. ओके, कि 0 पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट 1 भेजो. मतलब अब भेजो 1 मैं एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ, साथ में नंबर, नेक्स्ट बिट का नंबर भी सेंड कर रहा हूँ. दैट इज द कॉन्सेप्ट. हियर इट इज हैपन हियर. सो स्टॉप एंड वेट, प्लीज सी. फ्रेम 0 इज सेंडिंग. फ्रेम 0 हियर इट इज 0, हियर इट इज 1 0 1 0 1. हियर आल्सो कैसे अराइवल होगा? ये अराइवल होने के बाद ये 0 1 0 1 होगा. मैं ये पहले ऐसा नहीं है कि फ्रेम नंबर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. प्लीज वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ ये पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. फ्रेम 0 विल सेंड. जब ये रिसीव हो गया है, इट विल वेट, स्टॉप एंड वेट. इट विल वेट फॉर सम टाइम. इट विल सेंड एक्नॉलेजमेंट 1. Why? It will send acknowledgement 1. That means it knows that modulo 2 arithmetic is following for frame number. Modulo 2 arithmetic it is following from frame number for frame number. Now 0 पहुंच गया, 0 एक्सेप्ट किया है. उसके बाद कौन सा आना चाहिए? डेफिनेटली 1 फ्रेम आना चाहिए. So it will send acknowledgement 1. So acknowledgement भी भेजा, उसके साथ साथ रिक्वेस्ट फॉर 1 भी भेज दिया. सो दैट मींस यहाँ पे आप सेंड करेगा, ओके एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, देन अगेन सेंड 1 नेक्स्ट फ्रेम बीच में लॉस हो गया. प्लीज सी, नेक्स्ट फ्रेम पहुंचा नहीं है, रिसीवर एंड में नहीं पहुंचा, लॉस्ट. नाउ व्हाट हैपेंस? इट विल वेट फॉर सम टाइम. ऑब्वियस बात है कि ये नहीं पहुंचा तो एक्नॉलेजमेंट ये सेंड करेगा नहीं. कुछ देर वेट किया, दैट इज स्टॉप एंड वेट. कुछ देर इसने वेट किया. आफ्टर दैट इट विल अगेन रिसेंड द कॉपी. फ्रेम 1 को रिसेंड किया है बिकॉज इट विल नॉट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट. सिंपल कॉन्सेप्ट. एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं किया, इट विल सेंड अगेन रिसेंड. इट विल एक्सेप्ट इट एंड देन इट विल अगेन सेंड इट एक्नॉलेजमेंट. ओके डन, एक्नॉलेजमेंट डन. एक्नॉलेजमेंट इसने भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट 0 भेजेगा. व्हाई? बिकॉज 1 रिसीव किया है अभी तुरंत. इट विल सेंड एक्नॉलेजमेंट 0. सो एक्नॉलेजमेंट 0 जैसे ही यहां पहुंचा, इट विल अगेन सेंड द नेक्स्ट फ्रेम 0. नेक्स्ट फ्रेम इट विल सेंड. नाउ सी, इट विल सेंड द फ्रेम तो रिसीव कर लिया है, एक्नॉलेजमेंट 1 भेजा है. तो एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट. हो सकता है एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट. दैट मींस अब इसको समझ में नहीं आ रहा है. सिंपली बहुत अच्छे से समझ लो. ये ट्राई कर रहे हो कि एक्नॉलेजमेंट भेज दिया मैंने, 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा है, बट कुछ देर बाद इसने वेट किया. वेस्ट कट करने के बाद अगर ये एक्नॉलेजमेंट तो पहुंचेगा नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा, तो इट विल रिसेंड द डेटा 0, फ्रेम नंबर 0. इट विल रिसेंड. जैसे ही ये रिसेंड करेगा, इट विल सी, ओके 1 में एक्सेप्ट कर रहा था, 1 में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इट विल सेंड 0. दैट मींस इट इज डुप्लीकेट. इट इज द प्रीवियस वन. दैट मींस एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा है. तो अगेन इट विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट. It will send the acknowledgement again for 1. So acknowledgement received, then it will send the next bit. Is the thing clear to you? Stop and wait ARQ. Automatic repeat request is adding here. That means अगर data send नहीं पहुंचा, it will
ऑटोमेटिकली रिपीट दैट पर्टिकुलर फ्रेम। डेटा पहुंचा, उसके पास एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, उसके पास एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, कुछ देर बाद, कुछ देर ये वेट करेगा, टाइमर स्टार्ट्स, टाइमर वेट करेगा, टाइम आउट जैसे ही होगा इट विल रीसेंड इट। सिंपल कॉन्सेप्ट। इज द थिंग क्लियर टू यू? बोलोगे इज द थिंग क्लियर टू यू? स्टॉप एंड वेट एयर क्यू? बोलो हाँ ना, प्लीज टेल द थिंग। क्लियर दिस मच? बोलो बोलो बोलो। फिर कोई जवाब नहीं देता है। इज द थिंग क्लियर? आगे बढ़ूं? आनंद, आनंद कुमार, ओके ओके नेक्स्ट, go back n protocol. What go back n protocol tells? Go back n have a very interesting thing. Very interestingly, it will do the task. Go back n क्या करेगा? समझो, try to understand. It have mod 2 to the power modulo 2 to the power m number sequence. Go back n have modulo 2 to the power m, modulo 2 नहीं है, modulo 2 to the power m. That means फ्रेम नंबर तुम 0 to 7 ले सकते हो। इफ आई एम डूइंग 2 to the power m, m equals to 3, you can take 3, you can take m4। दैट मीन्स जब भी तुम काम करोगे सीक्वेंस नंबर को 0 to 7 हो सकता है, सीक्वेंस नंबर 0 to 4 सीक्वेंस नंबर हो, सॉरी 0 to 3 सीक्वेंस नंबर हो सकता है, 0 to 15 सीक्वेंस नंबर हो सकता है। उसके बाद फिर रिपीट करेगा ये, जैसे कि 0101 रिपीट कर रहा था फ्रेम नंबर, यहां पे रिपीट करेगा, गो बैक एन में रिपीट करेगा, 0 to 3 में भी रिपीट, 0 to 7 में भी रिपीट। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग मॉड्यूलो 2 to the power m, दैट मींस 2 to the power m का मॉड्यूलो में होना चाहिए। मैं कभी 0 to 5 नहीं ले सकता, बिकॉज 6 2 to the power में नहीं आता है, 6 मॉड्यूलो में नहीं कर सकता। हमेशा तुम्हें मॉड्यूलो डिवीजन जो करना है वो करना है 4 से, नहीं तो 8 से, नहीं तो 16 से, नहीं तो 32 से। दैट 2 to the power में तुम कर सकते हो। 64 से तो दैट नंबर यू हैव टू गिव मॉड्यूलो डिवीजन, यू हैव टू डू, बट यू हैव टू डू मॉड्यूलो डिवीजन 2 to the power कोई वैल्यू से, 2 to the power में आएगा इस तरह का कोई वैल्यू से। 4 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो, 16 से कर सकते हो। मॉड्यूलो डिवीजन जो करोगे वो इस तरह का कर सकते हो। तो दैट मींस अब ये जो सीक्वेंस होगा यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंगली एक स्लाइडिंग विंडो विल बी यूज्ड। स्लाइडिंग विंडो, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्लाइडिंग विंडो क्या बोलता है? स्लाइडिंग विंडो क्या बोल रहा है? स्लाइडिंग विंडो जस्ट टेल्स कि एक में विंडो साइज में एक सिंपल एक बॉक्स के तरह ट्रीट करेंगे। कोई एक नंबर ऑफ सीक्वेंस को, जो फ्रेम नंबर होगा उसको बॉक्स के तरह ट्रीट करेंगे। उस बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू मुझे मिल रहा है या कोई भी, मैं वो धीरे धीरे वो विंडो को स्लाइड करेगा। कोई डेटा अगर सेंड हो गया, कोई फ्रेम को सेंड हो गया, वो धीरे धीरे विंडो को स्लाइड करेगा। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सी हियर, दिस इज अ विंडो, दिस इज अ विंडो सिंपली। सो रिसीवर एंड में जो विंडो होगा उसका एक स्पेसिफिक साइज है गो बैक एंड में, वो स्पेसिफिक साइज में आऊंगा कि क्या साइज होना चाहिए। नाउ प्लीज बी केयरफुल, ये जो एक विंडो साइज है, मान लो ये एक विंडो है, उस विंडो को जब ये सेंड हो जाएगा ये स्लाइड हो जाएगा विंडो, मतलब यहां से यहां तक हो जाएगा विंडो। फिर ये बिट अगर सेंड हो जाएगा यहां से यहां तक विंडो बन गया। सो दैट मींस विंडो धीरे धीरे स्लाइड होगा इधर, इससे इस साइड से इस साइड।
विंडो धीरे धीरे स्लाइड होगा, विंडो साइज, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, दिस इज ऑल्सो। सो स्लाइडिंग विंडो इट एग्जिस्ट, गो बैक इन में स्लाइडिंग विंडो एग्जिस्ट कर रहा है, बट स्लाइडिंग विंडो किस साइड होगा, स्लाइडिंग विंडो होगा हमेशा सेंडर साइड में, सेंडर साइड में स्लाइडिंग विंडो होगा, रिसीवर साइड में स्लाइडिंग विंडो नहीं होगा, रिसीवर साइड में स्लाइडिंग विंडो नहीं होगा, स्लाइडिंग विंडो होगा सेंडर एंड में, स्लाइडिंग विंडो होगा सेंडर एंड में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सेंडर एंड में हमेशा स्लाइडिंग विंडो होगा, बट रिसीवर एंड में स्लाइडिंग विंडो नहीं होगा। Is the thing okay? Is the thing okay? So now how it will do the task, simply try to understand, say see here, go back in, नाम से ही पता करो, go back in, here 0 will be sent first, see 0 will be sent first, now frame 0 is sending first, so here you see 0 1 2 3 4, these are the frame numbers, 5 6 7, उसके बाद फिर रिपीट हुआ है 0 1 2 7, that means can you understand what is modulo 2 to the power n, मैं 8 से मॉड्यूलो डिवीजन कर रहा हूं, यहाँ 8 से मॉड्यूलो डिवीजन हो रहा है, 8 से मॉड्यूलो डिवीजन हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 से मॉड्यूलो डिवीजन कर सकते हो, 4 से करोगे तो क्या रिपीट होगा, 0 1 2 3 again 0 1 2 3 again 0 1 2 3 again 0 1 2 3, that will repeat frame number, but here frame number is repeating up to 7, so that means मॉड्यूलो 8 मॉड्यूलो कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो 8 में मॉड्यूलो कर रहा हूं ये 2 टू द पावर में होना चाहिए, दैट मींस 4 मॉड्यूलो कर सकते हो, 8 मॉड्यूलो कर सकते हो, 16 मॉड्यूलो कर सकते हो, बट 6 मॉड्यूलो इज नॉट अलाउड, 6 modulo division is not allowed, so that is the thing, here it is telling 2 to the power n modulo mein hona chahiye, so that's why here we are using 8 modulo division for making the frame number, it is the frame number, it is frame number, so 0th frame first it will send, okay done। स्लाइडिंग विंडो का साइज देखो, स्लाइडिंग विंडो का साइज देखो 0 to 6 तक स्लाइडिंग विंडो साइज होगा, नाउ व्हाई सो मैं आऊंगा उस पॉइंट में। नाउ इधर स्लाइडिंग विंडो एक ही है, इधर स्लाइडिंग विंडो एक ही है, क्या कर रहा है 0 सेंड कर रहा है, देखो 0 जैसे ही सेंड कर दिया 2 वेरिएबल्स आर देयर हियर, स्टार्ट एंड एंड, 2 वेरिएबल्स आर देयर, n आगे बढ़ रहा है बट sf वहीं पे है, n को आगे बढ़ा है, sn को आगे बढ़ा है, जब 0 सेंड हो जाएगा sn will increase but sf वही एग्जिस्ट कर रहा है, it will send, it will accepted, then it will send acknowledgement 1, that means it will wait for acknowledgement 1, it will want, यहां रिसीव हो गया, जैसे ये रिसीव हुआ सी विंडो इज स्लाइड, विंडो स्लाइड हो गया, देखो 0 से विंडो सीधा 7 तक पहुंच गया है, 1 से 7 तक विंडो पहुंच गया है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो, विंडो साइज स्लाइड कर रहा है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ही ये आगे बढ़ गया, अब फिर देखो SF और SN दोनों सेम पोजीशन में आ गया है, नाउ अगेन 1 सेंड, 1 received, acknowledgement 2 it will send, acknowledgement is lost, acknowledgement is lost, now see what's happened, where is the improvement, see जैसे ही ये, फिर इसने वेट नहीं करेगा, इसने क्या किया कुछ देर बाद 2 को भी सेंड कर दिया, यस 2 भी सेंड हो गया, see here 2 is also sending, SN इंक्रीज हो गया, एक्नॉलेजमेंट इसका भी नहीं पहुंचा है, 2 रिसीव्ड, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 3 इसने भेजा है, उसके बीच में एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 3 भी सेंड कर दिया, एक्नॉलेजमेंट स्टिल नहीं पहुंचा है, 3 भी सेंड हो गया, आ गया, जैसे ही ये, उसके बाद जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट 3 एक्सेप्ट कर देगा, दैट मींस विंडो स्लाइड्स होके सीधा 3 में पहुंच जाएगा। इज द थिंग क्लियर टू यू?
इज द थिंग क्लियर टू यू? इसका मतलब क्या, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट 3 पहुंच गया है, दैट मीन्स इट विल ट्रीट, ओके दैट मीन्स ये 3 आया है, दैट मीन्स ये 2 ऑटोमेटिकली पहुंचा था, 2 का एक्नॉलेजमेंट कहीं पे मिस हो गया, 2 पहुंचा था, 3 इसका एक्नॉलेजमेंट आया है, दैट मीन्स इट विल एक्सेप्ट इट। अगर ये नहीं पहुंचता तो क्या होता? सिंपली यू सी, simply you see here 0 send, it will send the acknowledgement, slide window slide हो गया। now 1 frame lost, नहीं पहुंचा। frame 2 no action, it will send, it will accept, बट ये तो वेट कर रहा है 1 के लिए, नहीं एक्सेप्ट करेगा, बट ये बैठेगा नहीं, ये सेंड करते रहेगा। 3 सेंड हो गया, फिर जैसे ही ये पहुंचा उसके बाद 3 पहुंच गया, अब उसके बाद क्या सेंड करेगा? कुछ देर बाद ही जैसे ही टाइम आउट हो गया, किसी का नहीं पहुंचा, किसी का ये एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज ये सेंड कर ही नहीं रहा है, बिकॉज सिंपली समझो इट ऑल्सो स्टॉप डूइंग एक्शन, बिकॉज इसको 1 आना चाहिए फर्स्ट, 1 आना चाहिए फर्स्ट, बट 1 नहीं पहुंच रहा है, 2 पहुंच गया, 3 पहुंच गया, बट इट विल सेंडिंग, बट एक टाइम के बाद जब इसने देखा ओके एक भी एक्नॉलेजमेंट मेरे पास नहीं पहुंच रहा है, देन इट विल सेंड अगेन फ्रॉम 1, दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग गो बैक n, गो बैक n अगेन, इस n को गो बैक करके सीधा यहां पे पहुंचा दिया। Sn जो हो रहा था, Sn को गो बैक, देखो Sn यहां तक पहुंच गया था, सो दैट Sn को अगेन ये इट विल बैक करके यहां पे ला दिया गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गो बैक n ARQ। इज द थिंग क्लियर टू यू? कुछ देर बाद जब ये डेटा को पहुंच रहा है, सब सेंड करते हुए जा रहा है, बट एक भी एक्नॉलेजमेंट उसके पास नहीं पहुंच रहा है। वाई एक्नॉलेजमेंट कैसे नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा एक भी नहीं, बिकॉज फ्रेम ही नहीं पहुंचा है। इट विल एक्सपेक्टिंग फॉर 1, बट 2 पहुंच रहा है, 3 पहुंच रहा है, 1 तो पहुंच ही नहीं रहा है, सो इट विल नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट अगेन। कुछ देर बाद देख रहा है एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंच रहा है, ओके देन अगेन इट विल सेंड रिसेंड द गो बैक n को बोलेगा ओके गो बैक इन द फर्स्ट पोजीशन, and again it will resend the frame. So resend acknowledgement. Is the thing clear to you? That's why it is called go back n ARQ. Go back n ARQ. So both the condition I have given here, that is for frame is lost, for acknowledgement is lost. Acknowledgement loss के लिए यहाँ फायदा है। एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट है मतलब नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट पहुंच गया तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, दैट इज द बेनिफिशियल, दैट इज द इंप्रूवमेंट इट विल डू गो बैक इन। बट व्हेनेवर एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड, इसके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जब भी ये फ्रेम को नहीं पहुंचेगा उसके लिए एक ये प्रॉब्लमेटिक जगह है। इज द थिंग क्लियर टू यू? गो बैक इन ARQ, वेरी क्लियर टू यू? यस नो? Yes, sir. Okay. Now this thing, so go back and complete. So or stop and wait last thing, that is now इसके लिए एक और चीज तुम्हें बोलना था। हाँ, विंडो साइज क्यों 2 to the power m-1 होगा? हमेशा विंडो साइज इस पर्टिकुलर गो बैक n में विंडो साइज 2 to the power m-1 होगा। अब 2 to the power m-1 मतलब तो विंडो साइज हमेशा 2 to the power m-1 होगा। 2 to the power m दैट मींस जो mth पोजीशन था 7, उससे एक कम हमेशा, सो दैट इज स्लाइडिंग विंडो। हियर इट इज, प्लीज व्हाई सो? बिकॉज सी दिस इज विंडो साइज मस्ट बी लेस देन 2 to the power m। जैसे कि यहाँ 4 तुम विंडो साइज दिए थे, मतलब 3 तक ये रिपीट कर रहा था, बट इससे एक कम हमेशा विंडो साइज होगा।
अगर ये इक्वल्स टू हो जाता, मतलब उतना ही बड़ा विंडो साइज मैंने ले लेता, उतना ही बड़ा m 2 to the power m तक विंडो साइज मैं ले लेता, तो क्या प्रॉब्लम होता, क्या प्रॉब्लम होता? देखो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे उसका लेस देन करेक्टली, उसका लेस देन 2 to the power, सो विंडो साइज हमेशा 2 to लेस देन 2 to the power m होगा। दिस थिंग इज राइट। विंडो साइज हमेशा, ये जो विंडो स्लाइडिंग विंडो साइज मैं बता रहा था, स्लाइडिंग विंडो साइज ऑलवेज गो बैक इन में लेस देन 2 to the power m होगा। व्हाई सो? प्लीज सी टू केसेस। जीरो सेंड हुआ, acknowledgement not received, fail, accept हुआ है, but it will send acknowledgement 1, frame 1, वो तो नहीं बैठेगा, ये acknowledgement के लिए नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा? frame 1 सेंड कर देगा, frame 1 again received, acknowledgement 2 भेजेगा, ये भी lost, acknowledgement 2 भेजा, ये frame 2 भेजा, again इसे accepted, it is lost, frame 3 is lost। अब ये जैसे देखा acknowledgement एक भी नहीं पहुंचा, यहाँ पे तक आया तो एक्नॉलेजमेंट एक भी नहीं पहुंचा, टाइम आउट। तो टाइम आउट के लिए क्या करेगा? इट विल अगेन रिसेंड 1, फ्रेम 0 अगेन इट विल रिसेंड, बिकॉज एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा और विंडो स्लाइड विंडो के बाहर आ गया है, ये विंडो के बाहर आ गया, दैट मींस टाइम आउट। तो जैसे ही टाइम आउट होगा ये फिर से ये रिपीट करेगा, बट इट विल एक्सेप्टिंग दैट 3, इट विल एक्सपेक्टिंग 3, सिंपली समझो, इट विल एक्सपेक्ट, बिकॉज एक्सेप्ट तो हुआ है, फ्रेम तो पहुंचा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा है, दैट मींस फ्रेम पहुंचा है, तो इट इज एक्सपेक्टिंग 3 और इट विल रिसेंड 0, तो 0 डिस्कार्ड करेगा, फिर 1 डिस्कार्ड करेगा, फिर 2, फिर डिस्कार्ड करेगा, फिर जब 3 भेजेगा तब उसको इसने एक्सेप्ट किया, तो दैट इज करेक्टली डिस्कार्डेड, ये डिस्कार्ड कर देगा। बट फॉर दिस केस लेट्स सी द सेम थिंग, फ्रॉम 0 सेंड किया, एक्सेप्ट कर लिया, नॉट रिसीव, 1 किया, एक्सेप्ट कर लिया बट नॉट रिसीव, 2 एक्सेप्ट किया बट एक्नॉलेजमेंट नॉट रिसीव्ड, 3, ये देखो 3 तक विंडो साइज है, तो 3 भी सेंड करेगा, जैसे ही 3 सेंड किया it will accept 3 and it will send acknowledgement for 0, जब ये भी lost, this is also lost, now try to solve this, ये रिसेंड करेगा, कौन सा रिसेंड करेगा, कौन सा रिसेंड करेगा? ये रिसेंड करेगा फ्रेम 0 को, बिकॉज एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा था, फ्रेम 0 को रिसेंड कर रहा है, बट इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग 0, सो करेक्टली एररनीमसली एक्सेप्टेड, वो भी ये 0 फ्रेम रिसेंड किया है, दिस इज रिसेंड फ्रेम, बट दिस 0 ये विल ट्रीट कि हाँ 0 ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 0 आ रहा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वाला 0 आ रहा है, इट विल सेंड दिस 0, it will accept this 0, so that is the problematic task in if you take window size equals to 2 to the power m. So that's why always take window size less than 2 to the power m in go back n. So this is your correct one, window size must be less than 2 to the power m, window size अगर 2 to the power m equals to ले लिया जाए तो ये एररनीमसली एक्सेप्ट करेगा, कब? जब एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचेगा, एक स्पेशल केस है, जिस स्पेशल केस में ये एररनीमसली एक्सेप्ट करेगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? एम आई क्लियर दिस मच? एम आई क्लियर दिस मच? ओके, नाउ the last go back in ERP, then go back in ERP was done. Now selective repeat request, selective repeat ARP. See here both side window size is there, both side window size is there, please see, both side sliding window is there, रिसीवर एंड में भी है, सेंडर एंड में भी है, सेंडर एंड में भी है, रिसीवर एंड में भी है। इससे पहले गो बैक एंड में क्या था? ओनली सेंडर एंड हैज दिस पर्टिकुलर थिंग, स्लाइडिंग विंडो, बट स्लाइडिंग विंडो हियर सिलेक्टिव रिपीट में बोथ साइड स्लाइडिंग विंडो होगा। नाउ ट्राई टू डू दिस अगेन, यू कैन सी द एग्जांपल, हियर बोथ साइड स्लाइडिंग विंडो होगा,
इस स्लाइडिंग विंडो का साइज क्या होगा वो मैं आ रहा हूं, थोड़ा देर में ही मैं आ रहा हूं। प्लीज सी द थिंग, it will send two control protocol, acknowledgement and NAC. Acknowledgement and NAC, these two acknowledgement type it will have. See, ACK and NAK, ACK and NAK. So that two acknowledgement style have it have. Please see the thing, frame 0 it will send, it will accept it. जैसे ही accept हुआ it will slide the window, window slide कर जाएगा। Please see, window is sliding, window slide हो गया है। Now acknowledgement 1 it will send, done, acknowledgement 1 send किया, जैसे ही acknowledgement receive किया ये slide हो गया, that is correct, done, sliding हो गया। ये अगर ये चलता रहा तो ये स्लाइड होते जाएगा, ये भी स्लाइड होते जाएगा, दैट इज अ सिंपल थिंग, डन। अब अगर फ्रेम नहीं पहुंच रहा है, 1 दिस फ्रेम इज नॉट रिसीव्ड, लॉस्ट, जैसे ही ये 1 लॉस्ट हो जाएगा ये तो 2 भेजेगा, 2 इज एक्सेप्टेड, प्लीज सी वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज अंडर दिस स्लाइडिंग विंडो। 2 जैसे ही ये रिसीव किया वो देखेगा अच्छा 1 नहीं पहुंचा, दैट मींस 2 इसने भेज दिया है, ओके। जैसे ही 2 भेज दिया इट विल एक्सेप्ट दिस 2 बिकॉज इट हैव दिस स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो में अंदर है 2 तो 2 को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल सेंड ए नैक कि आप ओके 1 नहीं पहुंचा है भाई, प्लीज एक बार फिर से सेंड कर दो, दिस इज नैक 1। 2 एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ये सेंड करेगा नैक 1। अब इसके बीच में ये 3 भी सेंड कर दिया है, 3 सेंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी ये एक्सेप्ट कर जाएगा। जैसे एक्सेप्ट किया ये सेंड करके ये भेजेगा, ये पहुंचा अच्छा नैक 1, दैट मींस नैक 1, दैट मींस 1 नॉट रिसीव्ड, 1 नॉट रिसीव्ड, सो इट विल रीसेंड 1, इट विल रीसेंड 1, ओनली 1। जैसे ही ये 1 रिसीव कर जाएगा इट विल स्लाइड, बिकॉज 2 3 उसने रिसीव पहले ही कर दिया था, इट विल अगेन सीधा यहाँ पे पहुंचा देगा एंड इट विल सेंड एक्नॉलेजमेंट 4, तो ये 4 के लिए भेजेगा, ओके। जैसे ही ये 4 रिसीव किया ये स्लाइड पूरा 2 3 ये 1 2 3 2 3 को फिर से रिपीट नहीं करेगा, ये सिंपल सीधा 4 पे पहुंच जाएगा। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर that's the advantage of this selective repeat request. Selective repeat request means selectively particular एक फ्रेम को वो मांग रहा है, that is selective repeat request। एक पर्टिकुलर फ्रेम को वो उसने मांगा, ओके पर्टिकुलर वो फ्रेम मुझे भेजो, बाकी तो मैं रिसीव कर रहा हूं बट उस फ्रेम को मैं नहीं पहुंचा, तो उस फ्रेम को वो रिसेंड करेगा। That is the simple concept in selective repeat request. Selective repeat request. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Now, window size. Window size क्या होना चाहिए? Window size हमेशा अगर 4 तक तुमने 4 से डिवाइड किया है, window size must be equals to 2 to the power m-1. Window size 0 and 1 तक ही होना चाहिए। 4 साइज का फ्रेम को रिपीट कर रहे हो तो विंडो साइज 2 होना चाहिए, आधा आधा पूरा हाफ। अगर 8 से डिवाइड करोगे, फ्रेम को बनाने के लिए 8 से डिवाइड करते विंडो साइज 4 होता, विंडो साइज 4 होता बोथ साइड। अगर 8 से डिवाइड करते यही चीज तो विंडो साइज मस्ट बी 4 विंडो साइज होता। 2 to the power m-1, please be careful, 2 to the power m-1, window size equals to 2 to the power m-1, must be। See why? Same case, please see, frame 0 not received but acknowledgement not received, frame 1 received, acknowledgement not received, window size इधर बढ़ रहा है, देखो इधर तो बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, जैसे ही 1 रिसीव कर जाएगा 0, ये विंडो साइज को इधर हटा देगा 1 2, फिर 1 2, फिर ये जैसे ही 1 सेंड किया 2 3 आ गया, इट विल एक्सपेक्ट ओनली 2 3, इट विल एक्सपेक्ट 2 3, बट इसने क्या किया 0 को सेंड किया, फिर से रिसेंड करेगा बिकॉज
बिकॉज ये विंडो साइज के बाहर आ गया है, विंडो साइज के बाहर आ गया है SN। ओके, रिसेंड इट, रिसेंड 1, रिसेंड 0, जैसे ये 0 भेजेगा ये इट विल एक्सपेक्ट 2F3, इट विल डिस्कार्ड दिस। बट हेयर सी, अगर इससे बड़ा होता 3 साइज का ले लेते तुम, 3 साइज का ले लेते, मैं 2 साइज का लिया था, यहाँ पे 3 साइज का लिया रहा है विंडो साइज। प्लीज फ्रेंड 0 सेंड एक्सेप्टेड, लॉस्ट, अगेन 1 एक्सेप्टेड, लॉस्ट। विंडो साइज देखो स्लाइड हो रहा है, it is expecting 230 all this, because window size के अंदर कोई भी होगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। it will resend here, जैसे ये बाहर आ जाएगा it will send 3, it will send 0 again, this 0, but it will accept this 0 because this is inside the window size, sliding window size. That's why this is erroneously accepted. So must be 2 equals to 2 to the power m minus 1, not greater than 2 to the power m minus 1। कभी भी अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो, देखो 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो ये मॉड्यूलर डिवीजन, तो मस्ट बी 2, विंडो साइज मस्ट बी 2, विंडो साइज मस्ट बी 2। So that's why window size must be equals to 2 to the power m minus 1। Is that thing clear? Is that thing clear, everyone? So window size 1/2 of 2 to the power m. Is that thing clear to you? Everyone is clear this much? Over, class is over, class is over, thank you। किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।